ठीक है, वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। आवाज आ रही है मेरी क्लियर? Yes, sir. ओके फाइन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। So today as a revision class we will discuss about pull and push strategy once again. शुरू Good morning, sir. मॉर्निंग। ठीक है, फर्स्ट प्लीज स्टार्ट रीडिंग पुल एंड पुश स्ट्रेटजी। इसको पढ़िए। मुस्कान आप पढ़िए। मुस्कान आप पढ़िए। Yes, sir. Yes, sir. Pull and push strategy. Sales promotion decisions are significantly affected by whether the company decides to use a pull or a push strategy to accomplish as its objectives. Such a decision may require a little or a lot of cooperations from resellers. The requirements of कंटिन्यू। The requirements of implement on one strategy might be little more than to stock the product by the retailer. The other strategy may demand more participation from resellers, such as the ability to explain to consumers as to how a product works. In case of using pull strategy, marketing efforts are directed at the ultimate consumer and consumer promotions, such as consumer एक content. मिनट होल्ड कीजिए। एक मिनट Yes. होल्ड कीजिए। From this sentence that all the marketing strategy is directed towards the customer. ठीक है, तो coming to the diagram, अगर इस diagram को हम नोटिस करें तो now just look at this pull diagram. ठीक है, इसमें pull push combine करके है। Now it's a very simple strategy. It's a very simple strategy that flow of promotion का arrow देखिए, flow of promotion का and advertisement through advertisement. So now from manufacturer, the flow of promotion is coming directly to the consumer. Flow Yes, of sir. promotion is coming directly to the consumer. Okay, we are discussing pull strategy. So now pull is all about we have to pull the entire system, the entire channel, the entire trader channel. Okay, we have to pull it. Now मैन्युफैक्चरर ने जो भी ऑफर है प्रमोशन का, उन्होंने कस्टमर को एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, ठीक है, उनको पहुंचा दिया। That now you will get, if you'll purchase this bottle, you will get 1 + 1 free or 40% discount or some coupon you will get, and all the different tools which we have discussed previously. Now assuming that manufacturer has given all the offers to the consumer with respect to the concerned product, ठीक है, 1 + 1 free, 40% discount or any other, ठीक है, movie free or something like IPL का मैच चल रहा है, you will, if you purchase the product and if you become lucky, you can get the ticket for to watch IPL in Dubai. Now अब चूंकि ये ऑफर कस्टमर को दिया जा चुका है, तो नाउ कस्टमर विल डिमांड द प्रोडक्ट फ्रॉम द रिटेलर. The customer will demand the product from the retailer. Clear है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Is it sir. clear? Fine. Now retailer जो है, ठीक है, he is not dealing in that product. Retailer, that particular retailer in your area, he is not dealing in your product. Now the footfall, because of the offer given, that okay fine, if you will purchase that product, you will get a ticket to lucky draw, you get a ticket to IPL. Now on that motivation, ठीक है, जितने भी कस्टमर हैं वो उस प्रोडक्ट को खरीदने की कोशिश खरीदना पसंद करेंगे। Yes, sir. खरीदना चाहेंगे। अब खरीदने के लिए अब वो कंज्यूमर जो है वो रिटेलर के पास जाएगा, दुकानदार जो आपकी बगल में दुकान है,
अब एज्यूम कर रहे हैं कि उस दुकान में, उस दैट रिटेल आउटलेट, दैट पॉइंट ऑफ परचेज, उसमें स्टॉक नहीं है, बट अगर 20-25 कस्टमर, 50 कस्टमर आकर के उन्होंने डिमांड कर दिया कि आई वांट दैट प्रोडक्ट, I want that product. Now the retailer will think that since the demand is coming of this particular product, right? So it means it has become necessary to stock this product in my retail outlet. हमको इसका स्टॉक रखना पड़ेगा क्योंकि इसका डिमांड बहुत ज्यादा आ रहा है. Okay, fine. So now retailer will present this demand to the wholesaler, क्योंकि wholesaler से ही वो सारा सामान लेता है. Yes, sir. ठीक है, फाइन. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द डिमांड. द फ्लो ऑफ प्रमोशन हैज बीन गिवन फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू द कंज्यूमर. ठीक है. नाउ फॉर दिस द रिटेलर, द डिफरेंट रिटेलर, जितने भी जो दुकान है, ठीक है, लेट्स से कि 5-6 outlets are there. Now 5-6 outlets, they are connected with that one wholesaler from whom they are taking the product. अब उस होलसेलर के पास अगर 5-6-7 दुकानदार चले जाते हैं, ठीक है, रिटेलर्स, कि सर वी नीड दिस प्रोडक्ट बिकॉज द डिमांड इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, कस्टमर्स आर कमिंग इनटू आवर रिटेल आउटलेट्स एंड आस्किंग और डिमांडिंग फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, सो वी नीड टू स्टॉक दिस प्रोडक्ट, वी नीड टू डील विद दिस प्रोडक्ट, वी नीड टू ट्रेड विद दिस प्रोडक्ट. इसमें हम लोग को ट्रेडिंग करना होगा क्योंकि इसका डिमांड है. नाउ एज्यूमिंग दैट होलसेलर is not the wholesaler of the product which has been demanded, right? He is the wholesaler of different products. Now that wholesaler, now when all the retailers will move to the that particular wholesaler कि सर इसका स्टॉक रखना होगा क्योंकि इसका डिमांड बहुत ज्यादा आ रहा है. So now that wholesaler will come to the conclusion that okay, fine, since the demand has increased, many of the retailers have come to me and have requested that we are supposed to deal with the product. ठीक है. So now that wholesaler will present its demand to the manufacturer that please give me the wholesale, ठीक है, of this product. Clear है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Fine. Yes, sir. जिनको नहीं क्लियर था, एक्चुअली ये बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है, बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है, बट अगेन एज अ मृणाल चंद्रा, इट इज क्लियर टू यू? मृणाल चंद्रा, इज इट Yes, क्लियर sir. टू Yes, यू? sir. Yes, sir. It is very simple, it is very simple, right? The incentive, the offer has been given by the manufacturer to the consumer directly. Now consumer, because it's the buyer's market, so consumers have become the king. It is the consumer decides what product will be in the market. If they demand for some particular product, if they are demanding, उन्होंने डिमांड किया है इस प्रोडक्ट का, ये प्रोडक्ट चाहिए, तो अब है कि बाय डिफॉल्ट रिटेलर को उस प्रोडक्ट को रखना ही पड़ेगा. तो दिस इज हाउ द एंटायर सिस्टम इज पुल्ड. दिस इज कॉल्ड पुल स्ट्रेटजी. कि फ्लो ऑफ प्रमोशन का एरो देखिए, ठीक है, प्लस द मीडियम इज एडवर्टीजमेंट, कि दैट ऑफर हैज बीन ट्रांसफर्ड, हैज बीन एयर्ड, हैज बीन ब्रॉडकास्ट, हैज बीन मेड अवेलेबल थ्रू एडवर्टीजमेंट टू द कंज्यूमर्स. क्लियर है? एंड नाउ द एरो ऑफ द डिमांड, if you can notice on your screen, the consumer has placed its demand to the retailer. Now retailer is placing its demand to the wholesaler, and wholesaler is placing its demand to the manufacturer. So the entire system has been pulled. पूरा pull हो गया. Yes, sir. Fine. This is simple pull strategy. Yes, sir. Now coming to push strategy. ठीक है, पहले इंडिविजुअल अलग अलग करके समझाते हैं. ठीक है, तो ओके फाइन. इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है पुल स्ट्रेटजी में. दिस प्रैक्टिस is exercised by all the manufacturers who are having a deep pocket, who are big manufacturers who can afford this much amount of promotion, because promotion में भी बहुत खर्चा होता है. अगर आप ऑफर दे रहे हैं, इट मींस कि देयर इज सम कॉस्टिंग बिहाइंड. उसके बाद एडवर्टीजमेंट का खर्चा है. तो ऑल द एडवर्टीजमेंट, ये मतलब ना नेशनल लेवल पे होता है. तो ना एडवर्टीजमेंट का खर्चा भी बहुत ज्यादा है. ठीक है, इफ आई एम प्लेसिंग माय एड on this, if IPL is going on, ठीक है, and or the Star Sports and Star TV and all, so now the costing is per second. It can be 50,000 per second, it can be 70,000 rupees per second.
ठीक है, just for 1 second. Now if the advertisement is of 4 seconds and if the costing is of 50,000, तो एक बार जो एड आया 4 सेकंड का, तो it means कि 200,000 rupees is gone, 2 लाख रुपीस. Now फ्रीक्वेंसी भी तो देना पड़ेगा, एक ही बार तो ऐड चलेगा नहीं. Kindly switch on your camera everyone. Switch on your camera everyone. Hello class. Yes, sir. देखिए कोई भी टॉपिक है उसका एक कंसेप्ट, अगर एक टॉपिक अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो तो बाकी सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है. ठीक है, सेल्स प्रमोशन, जैसे प्रमोशन मिक्स में promotion mix talks about 5 elements, right? That is की personal selling, direct selling, sales promotion, advertisement and publicity or public relation. These are 5 elements and that is your syllabus actually. Now all this different, it is an integrated approach. Integration है that direct selling and personal selling are two different things. Personal selling happens to be all the physical shops, point of purchase from where we go and take the product. And direct selling happens to be all this e-commerce and platform. Now all the companies almost now, आज के डेट में 2020, सभी कंपनी पर्सनल सेलिंग और डायरेक्ट सेलिंग दोनों जगह प्रेजेंट हैं. दोनों प्लेटफॉर्म पे पर्सनल सेलिंग पे भी प्रोडक्ट अवेलेबल है, ऑल द रिटेल आउटलेट्स, एंड एट द सेम टाइम डायरेक्ट सेलिंग, दैट वही प्रोडक्ट आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल है, फ्रॉम देयर यू कैन परचेज. It's all about, capturing the market. It's all about capturing the market, how efficiently, effectively you are able to capture it. So this is promotion mix, right? Now in furtherance to sales promotion we are talking about, that sales promotion happens to be that it is a collection of incentive tools. Sales promotion incentive tool का collection है जो हम कस्टमर को या ट्रेडर्स को देते हैं, तो वो मेरे प्रोडक्ट में इंटरेस्ट लेते हैं and they purchase the product. The action is purchase. Clear है यहां तक? तो pull strategy is practiced by all those companies who are big, right? Who is having a deep pocket. Deep pocket का मतलब जिनके पास ज्यादा पैसा है to sustain in the market. कोई जरूरी नहीं है कि आज हमने एडवर्टीजमेंट दिया तो आज शाम से ही ना फुटफॉल्स होना समय बिकने लगे. हो सकता है एक हफ्ते बाद बिके, तो एक हफ्ते तक पूरा एडवर्टीजमेंट तो चलाना होगा ना, रिपीट में. राजेश, राजेश. यस सर. हाँ, गुड मॉर्निंग. उसी में अच्छा, तो अब है कि एक हफ्ता तक अगर सस्टेन करना है राजेश, तो एक हफ्ता तक टीवी में ऐड तो चलाना पड़ेगा. टीवी में ऐड एक हफ्ता तक तो चलाते रहना पड़ेगा. और अब हम कह रहे हैं कि दैट इज की एक बार जो ऐड आया आपका 4 सेकंड का ऐड, उसका 2 लाख रुपए का कॉस्टिंग आ रहा है. ठीक है, डिपेंड्स ऑन द विच प्रोग्राम. कभी 20,000 रुपया पर सेकंड हो जाता है, 1,000 रुपया पर सेकंड. जब प्रोग्राम ज्यादा है तो उसका इट गोस टू 50,000 रुपीज पर सेकंड. तो जो अच्छा प्रोग्राम है, ठीक है, या मोस्टली आईपीएल का मैच एंड ऑल, जिसको बहुत ज्यादा लोग देख रहे हैं, तो एक बार 4 सेकंड का ऐड आया, 2 लाख रुपया खत्म हो गया. और आईपीएल में स्ट्रेटेजिक टाइम आउट जो आता है उसमें ऐड चलाते रहना पड़ेगा. एक बार ऐड से तो काम नहीं चलेगा, और एक हफ्ते तक लगातार चलाना है. या कहिए कि आईपीएल का जितना सीजन चल रहा है, ठीक है, उस टाइम तक ऐड. तो नाउ जस्ट इमेजिन द बजट, कि कितना पैसा खर्चा होता है एडवर्टीजमेंट में. क्लियर है? तो द कंपनी हु इज हैविंग अ डीप पॉकेट, मतलब उनके पास ज्यादा पैसा है, वही इस स्ट्रेटजी को अपनाते हैं. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. पुल स्ट्रेटजी क्लियर हुआ एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. यस हाँ. सर. अब स्टिल आई एम आस्किंग, ठीक है, किसको नहीं क्लियर है पुल स्ट्रेटजी? एनीबॉडी? मृणाल क्लियर है? मृणाल चंद्रा? Yes, sir. अच्छा, दिस वन. आइए आरती. आरती, आरती, हेलो. आरती क्लियर है? पुल स्ट्रेटजी क्लियर है? Yes, sir. ओके, फाइन. नाउ आई एम मूविंग टू पुश स्ट्रेटजी, इंडिविजुअल. सॉरी. पुश स्ट्रेटजी टॉक्स अबाउट, सिंपल जो वर्ड से हम लोग पढ़ते हैं कि इसको प्रोडक्ट को पुश करना है. ठीक है, तो इंडिविजुअल पुश स्ट्रेटजी वो मैन्युफैक्चरर्स प्रैक्टिस करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, those who the people manufacturers who are not having deep pocket. मेरी आवाज क्लियर आ रही है? Is my voice very much clear? यस सर. Yes, sir. Okay,
फाइन। तो पुश स्ट्रेटेजी में चूंकि मेरे पास मैन्युफैक्चरर के पास, आई बीइंग द मैन्युफैक्चरर, मेरे पास उतना पैसा नहीं है कि हम एडवर्टाइजिंग की कॉस्टिंग को अफोर्ड कर सके, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, बट स्टिल आई हैव टू गिव सम इंसेंटिव, कुछ तो इंसेंटिव देना होगा, ठीक है, सामान को बेचने के लिए। रीजन बीइंग कि अब बायर्स मार्केट हो चुका है। बायर्स मार्केट का मतलब कि एक ही प्रोडक्ट के बहुत ज्यादा प्लेयर्स हैं। दैट इज कि प्रफुल्ल को अगर मोबाइल खरीदना है तो उसके पास कम से कम 15 ऑप्शन है खरीदने का मोबाइल। अगर प्रफुल्ल को कार खरीदना है तो उसके पास कम से कम 15 ऑप्शन है। तो नाउ सिंस द नंबर ऑफ प्लेयर्स हैव इंक्रीज्ड, तो इट हैज बीन टर्म्ड एज बायर्स मार्केट, क्योंकि हमारे पास बायर के पास, ठीक है, ऑप्शन बहुत ज्यादा है। नाउ अब बहुत सारी कंपनी जो छोटी होती है उनके पास उतना फंड नहीं है कि हम एडवर्टाइजमेंट का, सेल्स प्रमोशन का कॉस्ट को हम अफोर्ड कर सके। तो वो क्या करते हैं कि वो पुश स्ट्रेटेजी को अपनाते हैं। दे अडॉप्ट पुश स्ट्रेटेजी। नाउ व्हाट इज पुश स्ट्रेटेजी नाउ? तो अब अगेन आप डायग्राम में देखिए, जो फ्लो ऑफ प्रमोशन है, फ्लो ऑफ प्रमोशन का एरो कैसे आ रहा है? मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर आ रहा है। Yes, sir. डॉटेड लाइंस में, डॉटेड लाइन एरो, Yes, sir. Yes, ठीक sir. है। तो नाउ मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर, अगेन नाउ होलसेलर टू रिटेलर। इसका मतलब है कि मैन्युफैक्चरर ने जो प्रमोशन, जो इंसेंटिव टूल है वो दिया होलसेलर को, क्लियर। फिर होलसेलर ने जो भी अपना मार्जिन है उसको अपना रख करके फिर उसने रिटेलर को दिया, और फिर रिटेलर कस्टमर को दे रहा है। तो एज्यूम हम कर रहे हैं कि मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, उसमें प्रमोशन में जो भी है, आपका डिस्काउंट की बात कर लेते हैं, ठीक है, कि 30% डिस्काउंट और 25% डिस्काउंट। इट मींस कि मैन्युफैक्चरर ने जरूर अगर 25% डिस्काउंट अगर अवेलेबल है कस्टमर को, ठीक है, जो रिटेलर आपको दे रहा है, इसका मतलब सिंपल है कि मैन्युफैक्चरर ने जो होलसेलर को जो मार्जिन दिया होगा वो कम से कम 40% का दिया होगा, कम से कम 40% का, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज, एज पर माई लेस नॉलेज, कि जो भी जो होलसेलर होते हैं, होलसेलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वो लोग 2 से 3%, 2 to 3% और 5% मार्जिन पे काम करते हैं। दैट इज कि दे कीप ओनली 5% और नोट, और बाकी जो आपका 40% का है तो 35% वो रिटेलर को दे देते हैं। ये बात समझ में आई? Assuming that the MRP is 100 rupees, 100 रुपए MRP है किसी प्रोडक्ट का। तो नाउ ऑन व्हाट प्राइस, प्रफुल्ल इसको बताइए कि 40% का मार्जिन है, तो मैन्युफैक्चरर ने जो MRP 100 रुपए का प्रोडक्ट है उसको मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को कितने रुपए में दिया होगा? कितने रुपए में दिया होगा? दैट इज कॉल्ड लैंडिंग प्राइस। प्रफुल्ल बताइए। प्रफुल्ल माइक ऑन कीजिए। हेलो सर। हाँ, अगर 40% का मार्जिन है, सिंपल, तो 100 रुपए की चीज मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को कितने रुपए में दिया होगा? बताइए। एनीबॉडी? 60 रुपए में, 60 Sir, rupees. 60 रुपए में देगा सर। 60 60 rupees. रुपीज में, ठीक है, 60 रुपीज में मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को प्रोडक्ट दे दिया, ठीक है, और एमआरपी आपका 100 रुपए का है। नाउ आई एम सेइंग कि उसी मार्जिन में से आपको रिटेलर और कस्टमर को भी डिस्काउंट जाना है। तो नाउ व्हाट होलसेलर विल डू, दैट ही विल कीप 2 to 3% मार्जिन और 5% मार्जिन, और उसके बाद वो रिटेलर को दे देगा सामान, ठीक है। रिटेलर फिर कस्टमर को अगर 20% मार्जिन दे रहा है, 20% डिस्काउंट, तो 20% डिस्काउंट का मतलब इफ 100 रुपीज इज द एमआरपी, तो उसमें 80 रुपए में उसको कस्टमर को सामान पड़ेगा, Yes, क्लियर। sir. तो Yes, sir. होलसेलर का लागत जो है वो आपका 60 रुपए का है, ठीक है। Yes, sir. और रिटेलर का लागत कितना होगा? मान लेते हैं 65 रुपीज और 65 और 67 रुपीज, तभी तो वो देगा। फाइन। इसके अलावा ऑल अलग अलग जो इंसेंटिव टूल्स हैं, ठीक है, पहले तो मार्जिन का हमने टूल दिया, ठीक है, दैट इज डिस्काउंट एंड ऑल हेवी डिस्काउंट। इसमें जो प्रमोशन का जो सीरीज चल रहा है वो मैन्युफैक्चरर होलसेलर को देता है,
मैन्युफैक्चरर होलसेलर को प्रमोशन दे रहा है, दैट इज इंसेंटिव टूल होलसेलर के लिए। तो होलसेलर के लिए और क्या क्या इंसेंटिव टूल्स हो सकता है? एक तो मार्जिन हो गया, सेकंड इज कि अगर आप मान लीजिए कि 1 मिलियन का आप सामान बेचेंगे 10 लाख रुपए का, तो आई विल गिव यू अ टीवी, ठीक है, एक हम 40,000 का 30,000 रुपीज का टीवी आपको हम देंगे। तो उसको मोटिवेशन मिलेगा होलसेलर को, क्योंकि फाइन आई विल बेनिफिट विद द टेलीविजन, ठीक है। इफ यू विल सेल ऑफ 2 मिलियन, 20 लाख रुपए का आप सामान बेचेंगे, तो यू विल गेट अ ट्रिप टू सम लाइक सिंगापुर और न्यूजीलैंड, समथिंग लाइक दैट। तो इस तरह से हम जो पैसा है मेरा, उसको हम खर्च करते हैं ट्रेडर चैनल में, ट्रेडर चैनल में, क्योंकि एडवर्टीजमेंट का कॉस्ट हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उधर करोड़ों का खर्च आ जाता है। क्लियर? तो और एक होलसेलर को, ठीक है, या जो भी रिटेलर है, वो अगर कॉन्टेस्ट में अगर पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनको टीवी देना या फ्रिज देना या अब्रॉड का एक ट्रिप लगवाना, टूर दे देना, वो हमको कॉस्टिंग कम पड़ेगा एज कंपेयर टू एडवर्टीजमेंट का कॉस्ट। ठीक है? तो नाउ दिस पुश स्ट्रेटजी इज अडॉप्टेड, is practiced by the newcomers, the new manufacturers who are not having a very deep pocket, but they give incentive to the wholesaler, to the retailer, right, so that they take the interest in selling their products. Now अब डिमांड का एरो देखिए, एरो में हमेशा एग्जाम में गड़बड़ हो जाता है कि फ्लो प्रमोशन का एरो डॉटेड लाइंस में, तो वो तो सीधे अपना टॉप टू बॉटम आ रहा है, याद रखने में कोई दिक्कत नहीं है। बट फ्लो ऑफ डिमांड आई एम टॉकिंग अबाउट, फ्लो ऑफ डिमांड। फ्लो ऑफ डिमांड में चूंकि मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को ये आपका इंसेंटिव दिया, ठीक है, तो डिमांड होलसेलर प्रेजेंट कर रहे हैं मैन्युफैक्चरर से, क्योंकि फाइन यू गिव मी द होलसेल ऑफ दिस प्रोडक्ट, आई एम इंटरेस्टेड इन डीलिंग विथ योर प्रोडक्ट, आई एम इंटरेस्टेड इन ट्रेडिंग विथ योर प्रोडक्ट। क्लियर है? उसके बाद अब पुश स्ट्रेटजी के थ्रू होलसेलर और रिटेलर का जो रिलेशन है, वो एग्जैक्टली द टीम लीडर एंड द एग्जीक्यूटिव्स उसी होलसेलर से जितने भी रिटेलर है सामान लेते हैं। ठीक है राजेश? राजेश बात क्लियर हो रही है? यस सर, यस सर। ओके, तो अब होलसेलर जो है वो पुश करता है अपने रिटेलर्स को, मोटिवेट करता है कि दैट काइंडली डील विद द प्रोडक्ट, और आपके जो कस्टमर हैं जिनसे आप डील कर रहे हैं उनको प्रमोट कीजिए, एडवोकेट कीजिए कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, अपने लेवल पर इसको पुश कीजिए खरीदने के लिए। ठीक है? तो नाउ रिटेलर विल से दैट व्हाट इज द इंसेंटिव, मतलब हमको क्या है। तो नाउ अगेन द फ्लो ऑफ प्रमोशन का डॉटेड लाइंस देखेंगे तो होलसेलर रिटेलर को प्रमोशन दे रहा है, तो ऑन दैट मोटिवेशन द रिटेलर विल पुश द कस्टमर। अच्छा 10 मिनट टाइम है, अटेंडेंस ले लीजिएगा प्लीज। रिटेलर विल पुश द कस्टमर, ठीक है, पुश इज प्रोडक्ट्स टू द कस्टमर। तो मृणाल चंद्रा मान लीजिए कि गए आपके रिटेल आउटलेट पे, क्लियर? अब he was supposed to take one pen, now एक नया पेन आया है, तो now the retailer will say that sir this is a new category of pen, ठीक है, it's very good, उसको पुश करता है रिटेलर। ठीक है? तो फ्लो ऑफ डिमांड का, डिमांड को पुश किया जा रहा है होलसेलर टू रिटेलर एंड रिटेलर टू कंज्यूमर। पुल एंड पुश दोनों अलग अलग है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। फाइन। आज के डेट में चूंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, कंपटीशन क्योंकि नंबर ऑफ प्लेयर्स इन द मार्केट हैव इंक्रीज्ड एंड ट्रेड हैज बिकम मोर स्ट्रांग। ट्रेड का मतलब है कि जितने भी जो आपके ट्रेडर्स हैं, ठीक है, वो स्ट्रांग हो गए। रीजन बीइंग कि कंपनी अब प्रैक्टिकली हर जगह अपना शोरूम नहीं खोल सकती है, तो दे हैव टू डिपेंड ऑन द दिस ट्रेडिंग चैनल सामान को बेचने के लिए। क्लियर है? तो नाउ द कंपनी हैज टू फॉलो push strategy and pull strategy simultaneously for the consideration to capture the market। क्योंकि अब मान लीजिए आप कस्टमर को आपने बहुत ज्यादा इंसेंटिव दिया, ठीक है, और रिटेलर को आपने नहीं दिया, तो रिटेलर के पास अभी बहुत सारा ऑप्शन है जो कंपनी इनको इंसेंटिव दी, उन्हीं का प्रोडक्ट बेचेंगी, सिर्फ एक आप ही का प्रोडक्ट का ऑप्शन तो है नहीं। नाउ वी हैव टू प्लीज द कस्टमर एंड द ट्रेडर चैनल in order to sell the product, in order to
गेन द मार्केट शेयर। तो इसमें आपका कंबाइंड डायग्राम है पुल एंड पुश स्ट्रेटेजी का, जो मोस्ट ऑफ द कंपनीज आज की डेट में प्रैक्टिस करती है, ठीक है, टू सेल द प्रोडक्ट्स। क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. ठीक है। पुल एंड पुश को आप लोग और भी रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। रीड द लिटरेचर, आपका किताब में जो है उसको, या कुछ आप गूगल सर्च पे और भी इसको डिटेल में पढ़िए। और मोस्टली जो है आपका जो इंसेंटिव टूल्स है, इंसेंटिव टूल्स में बहुत ज्यादा रिवीजन हुआ है, ठीक है। तो इंसेंटिव टूल्स का कलेक्शन फॉर द कस्टमर्स एंड फॉर द ट्रेडर चैनल, इसका कलेक्शन कीजिए, आपको और कंसेप्ट क्लियर होगा। मतलब इसको डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes. फाइन, Yes, sir. चलिए ठीक है। अटेंडेंस ले लेके हमको भेज दीजिएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच, विश यू अ गुड डे। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू।